Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss hydroformylation is nothing but the oxo process. Okay. Here I am just going to making the mistake in writing, student. This is not the hydroxylation. Basically this reaction is the hydroformylation reaction from the organometallic chemistry chapter. Okay. So in the last video we are going to be started with the catalyst part from the organometallic chemistry. So we already discussed the Wilkinson catalyst, which is going to be very famous catalyst from these organometallics. Now in the today's session we are going to discuss the your cobalt base and the rhodium base catalyst, which we are going to be utilized into the hydroxy formylation reaction, which is nothing but your oxo process. Okay, now without wasting our timing we are going to be started with the main session. Now the basically this hydroformylation reaction first time introduced in the 1983 by the scientist Otto Roelen. Okay, so these are the actually scientists who introduced this basically reaction, and the mechanism part of this reaction will be introduced by the Heck and the Breslow scientists. Okay, so these are the actually introduction. Then what is the main purpose of this reaction? Like in the Wilkinson catalyst we are going to do the hydrogenation of alkene, बराबर. So in the same way hydroformylation का मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, फॉर्मुलेशन मीन्स अल्डेहाइड ग्रुप. So in the this chemical reaction you are going to be form aldehyde as a major product. तो यहाँ पे formation of aldehyde will be taking place by the addition of alkene, CO, carbonyl and the hydrogen. So when these three reactant means your alkene, carbonyl and the H2 are going to be reacting with each other, you are finally get the as a major product will be the aldehyde. So these are the actually main hydroformylation reaction, which is nothing but the oxo process. So now what about the catalyst? Because we are going to be study the catalyst, बराबर. तो in this reaction we are going to be use the catalyst. One will be the cobalt based catalysis, which is HCO. अब यहाँ पे CO है cobalt और CO3 जो which is present in the bracket. This is the ligand, carbonyl ligand, which are having 3. Whereas the another catalyst which we are going to be utilize in the reaction will be rhodium carbonyl complex. Now how we are going to be use both the catalyst in the reaction, मैं उसका reason आपको आगे जाके बताऊंगी. So just take a look. These are the actually general reaction. So these are the your alkene combined with the carbonyl group 1 mole of and the 1 mole of hydrogen when they are going to be reacting with each other in the presence of catalyst. Now catalyst कौन सा यूज करेंगे हम लोग? कोबाल्ट बेस मीन्स HCOCO3 in the presence of the room temperature यहाँ पे नहीं यूटिलाइज होता, that you should keep in mind. This reaction will be taking place at the higher temperature and the higher pressure. तो temperature mostly it is going to be based on the 140 degree Celsius to 250 degree Celsius होता है, and pressure will be the 200 to 400 bar. So that is the reported pressure for the hydroxy formylation reaction, and the product you will get the 2. अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं. मेजरली आपको एक मिलेगा लीनियर अल्डेहाइड एंड सेकेंड वन विल द ब्रांच अल्डेहाइड. सो द रेशियो ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी 4:1. सो इन द लार्ज अमाउंट यू विल गेट द लीनियर अल्डेहाइड एंड द ब्रांच अल्डेहाइड यू विल गेट द लिटिल अमाउंट. सो दीज आर द एक्चुअली बेसिकली योर हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ द reaction. Okay, अब what is the exactly mechanism behind it, how this 3 reactant converting in the aldehyde, that we can see over here. So just take a look. So before start with the mechanism part, first we should understand that these are the actually catalysts, which is the HCOCO3 is not going to be available very easily. तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता. सो टू फॉर्म द कैटलिस्ट, ओके, टू फॉर्म द एक्टिव कैटलिस्ट फर्स्ट वी हैव टू टेक कैरिड आउट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग पहले यूज करते हैं प्रीकर्सर ऑफ कैटलिस्ट. प्रीकर्सर ऑफ कैटलिस्ट मीन्स टू जनरेट द एक्टिव कैटलिस्ट फर्स्ट वी हैव टू यूज द सम ऑफ द केमिकल्स. सो विच इज द योर CO2 CO8 now having the 18 electron species. Okay, now in that you are going to add the hydrogen. Then after the carried out the chemical reaction you will get HCOCO4, which is again the 18 electron species. Okay, but now what we have to do over here, we require the 16 electron species. Why? Because we have to carry out the reaction along with the alkene. So we require the vacant site. तो यहाँ पे हमें कुछ empty site चाहिए to accommodate the alkene to carry out the chemical reaction. So again these 18 electron species, okay, we convert into the 16 electron species by removing one of the carbonyl ligand from this moiety. तो हमें फाइनली यहाँ पे मिलेगा HCOCO3 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी है टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन. दिस एक्टिव कैटलिस्ट हैज टू बी प्रेजेंट इनटू द 16 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे अगेन आस्किंग यू द ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट दैट शुड बी द +1. ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. देन अगेन दे आर गोइंग टू बी आस्किंग द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो दैट विल बी द 4:1 इन द प्रेजेंस ऑफ द HCOCO3 मीन्स कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट में.
ठीक है। अब ये हुआ प्रिकर्सर, तो फाइनली वी आर गेटिंग अवर एक्टिव कैटलिस्ट। नाउ यूजिंग दिस एक्टिव कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू बी कैरिड आउट द मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म जैसे कि इन द अर्लियर वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द विल्किंसन कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ द साइकिल, तो जिसे हम लोग बोलते थे टोलमन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर। अब देख लो, सबसे पहले एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी जनरेटिंग द एक्टिव कैटलिस्ट, in that active catalyst you are going to be add first alkane, because what now here the active empty site will be the generating। तो यहाँ पे जो vacant site generate हुआ है in the 16 electron, in that first you are going to be accommodate the alkene compound। So after addition of this group again the 16 electron species convert into the 18 electron, ठीक है। तो अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, द रिएक्शन विल बी स्टार्ट। तो ये यहाँ पे जो वैकेंट साइड था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट अल्किन ग्रुप। ना आफ्टर इंसर्शन ऑफ द अल्किन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 16 कन्वर्ट इनटू द 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। किसका करेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन, इन द प्लेस ऑफ 1 2, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप 1 and 2, ये हमें पोजीशन याद रखना है 1 and 2। सो यहाँ पे हुआ उसका 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। सो आफ्टर द 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन दिस ग्रुप विल बी कंप्लीटली अटैच टू ओवर हियर एंड द हाइड्रोजन विल बी, तो दीज आर एक्चुअली 1 2 माइग्रेशन इनके बीच में हो रहा है। सो यू विल गेट हियर अल्केन कंपाउंड CH2CH2R। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, वन मोर वैकेंट साइड अगेन जनरेटिंग। सो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है यहाँ पे कन्वर्ट होगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन में, बिकॉज फिर से यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंट साइड जनरेट हुआ। तो अगेन यहाँ पे जैसे आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा जनरेट, अगेन वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस द वन मोर कार्बोनिल लिगैंड विच इज गोइंग टू बी, पहले जो हम लोगों ने रिमूव किया था बराबर, वो हम लोगों ने फिर से इसमें क्या किया, इंसर्ट किया, ऐड किया। सो आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस अगेन यू विल गेट हियर व्हाट 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अपने यहाँ पे क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। After the addition of the carbonyl group, the next task will be again you have to do the migratory insertion। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये माइग्रेट होगा इन द फर्स्ट पार्ट, अगेन यहाँ पे होगा आपका 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन। तो ये इसके बीच में इंसर्ट होगा CH2 जो R ग्रुप है, इन बिटवीन दैट यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हुआ इसका माइग्रेटरी इंसर्शन। अगेन वैकेंट साइड विल बी जनरेटिंग, इन दैट नाउ यू आर गोइंग टू बी ऐड द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब है आपको, यहाँ पे OA का मतलब है करना है ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन में आपको रूल याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन ट्रांस होगा या सिस। तो मैंने आपको बोला था अगर वो नॉन पोलर इन नेचर है तो आपको सिस करना है, पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपको ट्रांस करना है। तो H2 का एडिशन कैसे होगा, सिस, मतलब बोथ द हाइड्रोजन शुड बी ऑन सिमिलर साइड। तो यहाँ पे मैंने H2 का ये सिस यहाँ पे एडिशन कर दिया ना। आफ्टर द एडिशन ऑफ द H2, okay, this vacant side will be completely fulfilled, and in the last step by follow the oxidative addition reaction, now you are going to do the reductive elimination। So after going to do the reductive elimination this complete group will be eliminated, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा R CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड फाइनली यू विल गेट द योर कैटलिस्ट रीजनरेटेड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस क्या होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट विल बी पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। तो वो खुद को रिएक्शन को सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को जल्दी होने के लिए वो हेल्प करता है, बट इट डजंट कंज्यूम इन द रिएक्शन। एज सच वी आर गोइंग टू बी रीजनरेट द कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आई एम गोइंग टू बी एड द कैटलिस्ट एंड अगेन आई एम गोइंग टू बी रीजनरेट द कैटलिस्ट एंड वी आर गेटिंग ऑल्सो फाइनल प्रोडक्ट RCH2CHO, ठीक है। तो टू कैरी आउट द कंप्लीट, ओके, फ्रॉम अल्किन टू अल्डिहाइड वी फॉलो द व्हाट, हाउ मेनी 4 स्टेप। पहले क्या होगा, एडिशन ऑफ अल्किन, देन अगेन एडिशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, देन आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड फाइनली रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो मेनी actually steps you have to follow and finally you will convert your alkene into the aldehyde group. I hope so now you should understand. Now based on this mechanism in the final examination, like if you are going to be prepare the competitive exam like set net get, आप अगर prepare करते हो, so on this mechanism they are going to be asking you the question, MCQ टाइप आपको क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर कोई MSc का एग्जाम अपेयर करे या पेट एग्जाम, तो इन दैट सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आता है दैट राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर दिस कैटलिस्ट। तो ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है साइकिल। अब देख लीजिए, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि व्हाइल आई एम गोइंग टू बी यूज द कोबाल्ट कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोक्सी फॉर्मुलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे व्हाट वी थिंक्स रिक्वायर, यहाँ पर आपके दो एक्चुअली मिनिमम ड्रॉबैक्स थे। द फर्स्ट ड्रॉबैक विल बी दिस कैटलिस्ट एक्चुअली रिक्वायर द हायर टेम्परेचर एंड द हायर प्रेशर विल बी द सेकेंड रीजन। टू कम अक्रॉस दिस 2 ड्रॉबैक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 अप्रोच एक्चुअली बेसिकली
फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किए, तो वो दो अप्रोच कौन से? फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू बी मॉडिफाइड अवर कैटलिस्ट, ठीक है, टू कम आउट फ्रॉम दैट ड्रॉबैक्स वी आर गोइंग टू बी अप्रोच द टू न्यू कैटलिस्ट। तो ये मॉडिफाइड कैटलिस्ट कौन सा था? सो सबसे फर्स्ट जो कैटलिस्ट जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, HCOCO3 जो हमारा एक्टिव कैटलिस्ट था उसमें हम लोगों ने बल्कि फॉस्फीन लिगैंड को ऐड कर दिया PbO3। तो दिस इज आवर फॉस्फीन लिगैंड। बट अगेन यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हुआ? सबसे फर्स्ट इसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था विच इज अ हायर 200 to 400, उसको उन्होंने क्या किया, रेड्यूस किया टिल 5 to 10 एटमॉस्फेयर। सेकेंड, प्रोडक्ट का जो रेशियो था 4:1 दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रूव एज 8:1, तो 8:1 ये रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। बट अगेन ड्रॉबैक विल बी दिस कि बाय एडिंग दिस एक्चुअली फॉस्फेट लिगैंड, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर तो रिडक्शन नहीं हुआ बट रिएक्शन का जो रेट था दैट इज गोइंग टू बी रेड्यूस, तो रिएक्शन का रेट यहाँ पे क्या हुआ, स्लो हुआ। सो द वॉट एवर इंटरेस्टेड प्रोडक्ट वी वांट दैट वी विल नॉट गेट ओवर हियर। सो अगेन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे बाय यूजिंग दिस फॉस्फेन लिगैंड, बल्किनेस विल बी जनरेटेड। सो अगेन वी आर गोइंग टू बी मॉडिफाइड अवर कैटलिस्ट इनटू द नेक्स्ट वे। तो ये था सेकेंड अप्रोच। तो उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट बेस में जो था कोबाल्ट को ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद द मेटल रोडियम। तो रोडियम आपको पता ही है, हम लोगों ने विल्किंसन कैटलिस्ट में भी यूज किया था। तो उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को रिप्लेस करके रोडियम डाला एंड CO और फॉस्फेन में यहाँ पे PH3 लिगैंड को अटैच कर दिया। तो हाइड्रोजन रोडियम CO PPH3। अब ये कैटलिस्ट यूज करने के बाद व्हाट चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस? सबसे फर्स्ट तो ये रूम टेम्परेचर पे हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट कर पा रहे हैं एंड सेकेंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कंट्रोल करें। तो बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा नॉर्मल एंड नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसके साथ हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं विच इज अ वेरी फेवरेबल एंड एक्सेसिबल रिएक्शन। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट का जो रेशियो था दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्प्रूव 16:1, तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो भी हाइड्रोफॉर्मुलेशन हमें करना था थ्रू द अल्किन वो एक्चुअली मोस्ट फेवरेबल था अलॉन्ग विद दिस एक्चुअली कैटलिस्ट। तो फाइनली जो कैटलिस्ट हाइड्रोफॉर्मुलेशन मतलब ऑक्सो प्रोसेस में यूटिलाइज जो किया गया वो था ये वाला कैटलिस्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे वन मोर ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का, वो याद रख लिया। अगर मान लीजिए ये जो मैंने जो कैटलिस्ट लिया वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। नाउ टू नो दैट फॉर द मैकेनिज्म टू कैरिड आउट द रिएक्शन और इंसर्शन ऑफ द अल्किन वी हैव टू क्रिएट द वैकेंट साइट। तो 18 इलेक्ट्रॉन में से वन ऑफ द लिगैंड आई एम गोइंग टू बी रिप्लेस। तो मैंने यहाँ से वन लिगैंड को रिमूव किया PPH3, तो ये यहाँ पर बना 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नाउ दिस एक्टिव कैटलिस्ट नाउ आई एम गोइंग टू बी अगेन taking over here and carried out the complete mechanism and finally I am going to be making the final your aldehyde product. But यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सपोज आई एम गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द लिगैंड। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने प्रेशर का लिगैंड बढ़ा दिया तो अगेन देयर विल बी द पॉसिबिलिटी टू दैट 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है अगेन दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड अगेन दैट आर गोइंग टू बी स्लोअर द रेट ऑफ द रिएक्शन, बराबर। तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करेगा, फिर से स्लो कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर सो टू कैरी आउट द कंप्लीट होल रिएक्शन। सो दीज आर द एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ऑक्सो प्रोसेस दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो इतने ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आते हैं फॉर द हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। नाउ जस्ट टेक अ लुक कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कैसे एग्जाम में आते हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी अप्रोच द क्वेश्चन। सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू बी टेकिंग फ्रॉम द नेट एंड द गेट एग्जामिनेशन। तो आपको इससे अंदाजा होगा कि क्या तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 नेट दिसंबर 2013 में। The question is that which one of the following is not suitable as a catalyst for hydroformylation। अब हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दिए और पूछा है कि इसमें से कौन सा कैटलिस्ट है विच इज नॉट सुटेबल फॉर द हाइड्रोफॉर्मुलेशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है। अब HCOCO4 इट इज एक्चुअली व्हाट प्री एक्टिव कैटलिस्ट जो हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट किया था 16, तो ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं, बराबर। अब रहा HCOCO3 PbO3, ये हमारा मॉडिफाइड कैटलिस्ट है जो हम लोगों ने यूज किया था। रोडियम कोबाल्ट को रिप्लेस किया था 3 लिगैंड फॉस्फेट के, तो ये भी हम लोगों ने यूज किया था। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट सुटेबल। तो ये तीनों तो सुटेबल है, तो बचा कौन सा लास्ट वाला ये ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, डी। सो द डी ऑप्शन विल बी नॉट सुटेबल कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोफॉर्मुलेशन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देख लीजिए नेट जून 2011 में आपको एक क्वेश्चन पूछा था। In the hydroformylation reaction, the intermediate CH3 CH2 CH2 CO CO4, ओके। तो ये इंटरमीडिएट कैसे जनरेट हुआ था। फर्स्ट
ये इंटरमीडिएट से क्या होगा, फॉर्म्स एन असाइल इंटरमीडिएट, ये असाइल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, या फिर फॉर्म्स एन अडक्ट विथ एन ओलिफिन रिएक्टर, रिएक्ट्स विथ H2 तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट्स प्रोपेन, प्रोपेन का तो सवाल नहीं, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल है। अब यहाँ पे बात हो रही अडक्ट की, तो अडक्ट के लिए दो एक्चुअली रिएजेंट वी आर गोइंग टू बी कंबाइंड टुगेदर और सबस्ट्रेट, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, इंटरमीडिएट पूछा है। तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ पर देखोगे केमिकल रिएक्शन में, तो आपने जैसे ही यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को इंसर्ट किया था, तो आपने यहाँ पे क्या किया था, असाइल डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट फॉर्म्स एन असाइल इंटरमीडिएट विद दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये इसका राइट आंसर। अब देख लीजिए, ये गेट 2012 में क्वेश्चन आया था, दैट एन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ ओलिफिन यूजिंग CO2 CO8 एज अ कैटलिस्ट। तो अब ये कैटलिस्ट यूज करके हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन में हमें कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है वो उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले देखो HCOCO6 मतलब कार्बोनिल 6, तो ये ऑप्शन नहीं है। H4COCO3, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन 4 हम लोगों ने लिए ही नहीं थे, ठीक है। H2COCO4 ये भी नहीं है। अब बचा कौन सा, आप अगर देखोगे, सो जस्ट टेक अ लुक, प्रीकर्सर कैटलिस्ट आपने लिया था CO2 CO8 टू कन्वर्ट दी एक्टिव कैटलिस्ट द विच इज द इंटरमीडिएट HCOCO4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, HCOCO4, सो डी विल बी द राइट आंसर। देख लीजिए, हम लोगों ने वेरी इजीली वी आर गोइंग टू बी अप्रोच द क्वेश्चन बिकॉज वी नो द एग्जैक्टली थ्योरी। तो इसके लिए थ्योरी पार्ट होने के बाद ही आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हो कि एग्जाम में अगर कौन से क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे अटेम्प्ट करने, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखिए, आपको पूछा गया है हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन आर कैटलाइज बाय, कौन से कैटलिस्ट से रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट करते हैं। सो टिटेनियम क्लोराइड, तो ये तो है ही नहीं है। PPHC RHCl, क्लोराइड का कोई सवाल ही नहीं, हाइड्रोफॉर्मुलेशन निकेल भी नहीं है। तो बचा कौन सा, CO2 CO8, सो डी विल बी द राइट आंसर। तो ये कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए। एंड द लास्ट, इन हाइड्रोक्सी फॉर्मुलेशन रिएक्शन यूजिंग रोडियम PPH3 3COH, तो डेफिनेटली कैटलिस्ट हम लोग का लास्ट वाला था, मॉडिफाइड कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट एडिशन ऑफ एक्सेस PH3 वुड बी, जो मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था। अगर मान लो हम लोगों ने एक्सेस में PPH3 जो लिगेंड है उसको ऐड किया, तो मैंने क्या बोला था, क्या होगा, इफ आई एम गोइंग टू बी ऐड इन एक्सेस अमाउंट, अगर मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज किया लिगेंड का या फिर, तो ये क्या करेगा, आपका जो 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है उसको अगेन कन्वर्ट करेगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। एंड अगेन once it is going to be converted into the 18 electron species, the rate of reaction is going to be what, reduces। तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन का जो रेट था, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन देखो, स्टॉप रिएक्शन तो होगा नहीं है, नॉट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो हमें चूज करना है सिर्फ दो ऑप्शन, ए और बी में, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन होता नहीं है, इफ आई एम गोइंग टू बी एट द एक्सेस ऑफ लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होता है, बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर मैकेनिज्म, on the basis of the modified catalyst, and these are the general reaction, they are going to be asking you the question in the final examination, ठीक है। so I hope so आपको ऑक्सो प्रोसेस प्रॉपरली समझ में आई हो, या फिर आपको सपोज कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस केमिकल रिएक्शन और दिस मैकेनिज्म पार्ट, सो डेफिनेटली यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन, I resolve your all the problems, okay। so thank you so much watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us, okay। thanks a lot।